Everybody, and welcome back to Lit Up with Annie and to this series of Prepare with Me for your UPPSC GDC Assistant Professor English exam. So, we've been doing uh, two units simultaneously. The one which I had started with the short videos one was your Unit 10. Let me just take you once to your syllabus. So, this is your syllabus, and I had started with this Unit 10 Literature in Translation. If you haven't done this yet, I have already covered the main concepts: source text, target text, foreignization, domestication, equivalence, Scopus theory, kinds of translation. I've covered these things in short videos. Then the first one, Translation Studies, Chapter 1 of Andre Lefebvre's Translating Literature. This is also done in a larger video. I've also made a playlist for all of you so that it becomes easier to cover. Okay? Today, I'm going to cover the second topic. This work, this essay, India, England, France, a post-colonial translation triangle by Harish Trivedi. All right. So, as I was saying, I've also made a playlist. You can go on my channel, you can tap on the playlist section, you will find UPPSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट है. कोई भी अगर आपसे क्लास मिस हुई है उसको जाके देखो, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज essay. Which is India, England, France, a post-colonial translation triangle. Now the essay begins with this title, resume, and then there is an abstract. जैसे पेपर प्रेजेंट करते हैं ना, उसी फॉर्म में है. And then there are two parts of the essay, part 1, part 2. उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं. What is there in the resume part? The essay opens with a synoptic statement of its central argument. It proposes a triangular model of translation relationships between India, England and France. तो एक साइनॉप्सिस सा दिया हुआ है स्टार्टिंग में और अपना सेंट्रल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है. उन्होंने कहा है कि एक ट्रायंगुलर मॉडल मैं प्रपोज कर रहा हूँ एक रिलेशनशिप शो करने के लिए ट्रांसलेशन का रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एज द रिसीविंग लिटरेरी सिस्टम, इंग्लैंड एज द colonial center of linguistic and cultural power, and France as a non-colonial but prestigious alternative European culture. इंडिया तो रिसीविंग एंड पे है बिकॉज कोलोनाइज था. इंग्लैंड जिन्होंने कोलोनाइज किया था वो colonial center हैं of all the speech, all the language related things, and also the cultural power they hold. France, although not, it's not presented as a colonial place, but as a non-colonial, लेकिन फिर भी very prestigious alternative European culture. Traditionally, translation in colonial India was dominated by English, right? अगर हम colonial times की बात करें इंडिया में तो we had so many मिशनरीज जिन्होंने इंग्लिश को स्प्रेड किया यहाँ पे. टू अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर, ऑल द इंडियन टेक्स्ट्स, द संस्कृत टेक्स्ट्स, दे वर ट्रांसलेटेड, मेनी ऑफ देम वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. तो जो ट्रांसलेशन था कॉलोनियल इंडिया में वॉज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश, द लैंग्वेज ऑफ द कोलोनाइजर्स एंड मॉडर्न एजुकेशन. ओकेजनली हाउएवर कुछ इंडियन राइटर्स और ट्रांसलेटर्स थे हु टर्न्ड टू फ्रेंच लिटरेचर एज वेल एज अ डेलिबरेट एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस. कभी कभी होता है ना कि आपको बस दिखाना है कि आई एम रेजिस्टिंग, आई डोंट अग्री. एंड जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, आप कहोगे पंखा चला दो, वो पंखा बंद कर देंगे. रेजिस्ट करना है बस किसी भी तरह. तो इंडियन राइटर्स, कुछ ट्रांसलेटर्स थे हु वांटेड टू शो सम रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश colonial system. So what they did is they turned to French literature as a deliberate act of resistance to the dominance of English. अब ये जो चॉइस है त्रिवेदी, हरीश त्रिवेदी का, ये हम लोग पढ़ रहे हैं जो पेपर है. तो हरीश त्रिवेदी कहते हैं इट इज़ नॉट मेरिली लिटरेरी
बट ये बहुत ही पॉलिटिकल एक्ट है, ये बहुत ही आइडियोलॉजिकल एक्ट है, एंड डेफिनेटली है, कुछ सोच के ही कर रहे हैं ना। फिर इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट दिया है अपने ऐसे का। ये जो ऐसे है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। पार्ट वन सर्वेज द हिस्टोरिकल फ्लो ऑफ ट्रांसलेशन, पूरा हिस्ट्री का जो पूरा फ्लो है ट्रांसलेशन का उसका सर्वे किया है। कब से कब तक? फ्रॉम इंग्लिश एंड फ्रेंच इनटू इंडियन लैंग्वेजेस, किस तरह से वी रीच्ड द इंडियन लैंग्वेजेस। पार्ट टू इट गिव्स अ डिटेल्ड केस स्टडी ऑफ, प्लीज रिमेंबर, प्रेमचंद्स हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ, उन्होंने एक फ्रांस का वर्क को हिंदी में ट्रांसलेट किया था, विच इज़ अमेजिंग क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन जहाँ डोमिनेट कर रहा था, फ्रेंच राइटर्स को ले रहे थे, फिर ध्यान में रख रहे थे। अब अदर वर्क्स वर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी और अदर इंडियन लैंग्वेजेस। तो प्रेमचंद का हिंदी ट्रांसलेशन है ऑफ एनाटोल फ्रांसिस, थाइस और अहंकार। ओवरऑल एम बताया है इन्होंने, इट इज़ टू शो हाउ ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंच represented a symbolic cultural assertion in colonial India, a way of claiming space beyond English dominance. कि जो ये ट्रांसलेट किया इन्होंने एक फ्रेंच वर्क को, ये बहुत एक सिंबॉलिक चीज़ है कल्चरल असर्शन का, वो भी कॉलोनियल इंडिया में। इट इज़ अ वे कि हम लोग स्पेस को क्लेम कर रहे हैं। कैसे? कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश वर्क्स को नहीं देख रहे, हम लोग एक नई टेरिटरी में भी एंटर कर रहे हैं। वी आर क्लेमिंग अनदर स्पेस विच इज़ बियॉन्ड द इंग्लिश डोमिनेंस। ठीक है, देन दी ऐसे बिगिन्स विद पार्ट वन, द ट्रांसलेशनल ट्रायंगल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो ही टॉक्स अबाउट द इंग्लिश डोमिनेंस। ही सेज इंग्लिश एंटर्ड इंडिया थ्रू द colonial education system. Macaulay's Minute, you all have done that in English in India. Macaulay's Minute of 1835, how English entered India and how so many people, missionaries were given license to preach in English, to teach the teachings of the Bible in that language, and so on and so forth. Now, by the 19th century, what happened? Most Western literature known in India came via English. जितना भी वेस्ट का लिटरेचर था वो यहाँ तक कैसे पहुँचा? इंग्लिश के थ्रू। जो इंडियन लैंग्वेजेस थी, इट सॉ न्यूमरस ट्रांसलेशंस ऑफ इंग्लिश राइटर्स। हम लोग शेक्सपियर को पढ़ रहे थे, स्कॉट को, डिकेंस को, इंडियन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया है इन राइटर्स को, बट दे ऑल केम थ्रू इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे थे। सो इंग्लिश जो है इट अक्वायर्ड प्रेस्टीज। इंग्लिश को एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस मिल गया हमारे कंट्री में एज अ डोमिनेंट लैंग्वेज, एज द लैंग्वेज दैट होल्ड्स पावर, एंड इफ यू लर्न दैट लैंग्वेज यू अल्टीमेटली होल्ड पावर। और ये जो मेंटालिटी है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये अभी तक गया नहीं है सैडली। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। येस, इट इज़ नेसेसरी। वाई? टू लर्न, टू interact globally with others, even in India, to interact with each other, north, south, east, west. We have so many languages, and therefore English is important to communicate, not because it will give you some kind of colonial power, right? But English ने acquire किया वो prestige as the language of power, modernity, science, सब कुछ उस language में हो रहा था, administration and literature. तो ये जो कल्चरल हेजेमनी हुई ऑफ इंग्लिश क्रिएटेड अ डिपेंडेंसी ऑन इट एज द सोल गेट वे टू वेस्टर्न कल्चर. सो दिस हेजेमनी, नाउ इंग्लिश डिडंट कम एंड से दैट ओके आई एम गोइंग टू रूल ऑल ओवर you guys, but it was like it was the people who were consenting to it, that yes, ये लैंग्वेज मैं सीख जाऊँ तो मुझे शायद पावर मिलेगा. तो वो एक हेजेमनी क्रिएट हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का. तो दिस कल्चरल हेजेमनी ऑफ इंग्लिश, इसने क्या किया, एक डिपेंडेंसी क्रिएट किया ऑन इट. इंग्लिश पे हमारा डिपेंडेंसी हो गया कि अगर मुझे इंग्लिश आई तभी मैं वेस्टर्न कल्चर में घुस सकता हूँ या घुस सकती हूँ. फ्रेंच एज एन ऑल्टरनेटिव, लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में फ्रेंच वर्क्स थे दैट बिगैन टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन लैंग्वेजेस, दो ऑफन थ्रू इंग्लिश मीडिएशंस. अब कुछ फ्रेंच वर्क्स, फ्रेंच लिटरेचर का भी इन्फ्लुएंस आने लगा, लेकिन
ऐसा था कि कुछ फ्रेंच वर्क्स थे जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए थे और फिर वो इंडिया में आ रहे थे थ्रू दैट इंग्लिश गेटवे ओनली, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम फ्रेंच, बिकॉज आती नहीं थी लोगों को ना. कुछ फ्रेंच ऑथर्स थे who gained visibility in India mainly after winning the Nobel Prize, or they were being discussed in English journals, like these writers. These writers became popular in India, but it was still not directly. People were not reading directly through the French text, the original text, but it was in translation. The French works were translated to English and then they were coming to India. So French literature, it carried connotations of refinement. अलग था ना बिल्कुल works. They had a different set of ideas, they had a different set of refinement in the works. Another different kind of an emotional depth also. Often seen as less rigid than English Victorian morality. Victorian era में you all know what kind of works were there. Charles Dickens, Bronte sisters, George Eliot and others. फ्रेंच लिटरेचर में अलग था, एस्थेटिसिज्म, इमोशनल डेप्थ, जबकि विक्टोरियन इंग्लैंड में रियलिज्म की तरफ हम लोग जा रहे थे. सो इट वॉज लेस रिजिड दैन द इंग्लिश विक्टोरियन मोरालिटी. सम इंडियन ट्रांसलेटर्स दे प्रेज्ड फ्रेंच लिटरेचर इन देयर प्रेफेसेस, कंपेयरिंग इट फेवरेबली अगेंस्ट इंग्लिश. तो कुछ ऐसे भी थे हमारे राइटर्स इंडिया के, कुछ ट्रांसलेटर्स जो प्रेज कर रहे थे फ्रेंच लिटरेचर को अपने प्रीफेसेस में और कंपेयर भी कर रहे थे इंग्लिश के साथ, जैसे ड्यूमस वर्सेस स्कॉट, इस तरह का कंपैरिजन शुरू हो गया था. फिर आता है आइडियोलॉजिकल चार्ज ऑफ फ्रेंच चॉइस. तो चूजिंग फ्रेंच वॉज वेरी सिम्बॉलिक हियर. Comparing it with the English writers was again very symbolic. It challenged English cultural supremacy. अभी तक क्योंकि इंडिया के लिए इंग्लिश वॉज द प्राइम, द सुप्रीम. अगर रेस में कोई तीसरा आ जाए तो पहले की तो जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है. Therefore, it challenged English का जो ये cultural supremacy था उनका, while avoiding full rejection of European modernity. They were avoiding that. They were not rejecting the European modernity. So, but what it did is it opened a space for multiple Western influences, breaking English monopoly. Whatever monopoly was there of English, वो break हुई क्योंकि अलग अलग point of views अंदर आए. So, ये एक triangular relationship बना इंडिया, इंग्लैंड और फ्रांस का, with of course complex power dynamics. इंग्लिश जो कॉलोनियल और हेजेमनिक था, फ्रेंच कल्चरली प्रेस्टिजियस था लेकिन नॉन कॉलोनियल था, और इंडियन लैंग्वेजेस दे वर नेगोशिएटिंग बिटवीन देम, सीकिंग कल्चरल ऑटोनॉमी. तो इंडियन ट्रांसलेटर्स ने एक वे ढूंढा टू रेजिस्ट द इंग्लिश कॉलोनियल हेजेमनिक texts, culture, and they not switched entirely, but they created a space for another, which is French literature, to enter, जो culturally बहुत prestigious थी. ठीक है. फिर आता है part 2 of this paper, which is the case study of Premchand's Ahankar, 1923. Premchand, it gives a background, 1880 से 1936, जो एक लीडिंग हिंदी उर्दू नॉवलिस्ट थे, नेशनलिस्ट थे और एक रिफॉर्मिस्ट राइटर थे. ही इज़ अमेजिंग, and there have been so many translations of Premchand's work. Even today it is happening. एक लार्ज स्केल पे हो रहा है. 1923 में उन्होंने ट्रांसलेट किया एनाटोल फ्रांस का नॉवल थाइसिस इनटू हिंदी, और हिंदी में उसका नाम दिया अहंकार. उनको फ्रेंच नहीं आती थी, उन्होंने इंग्लिश वर्जन का यूज़ किया अपने सोर्स के लिए, शोइंग हाउ इवन फ्रेंच टेक्स्ट्स ऑफन केम वाया इंग्लिश. जो जैसे भी किया, लेकिन फाइनली एक फ्रेंच वर्क हिंदी में ट्रांसलेट हुआ. ट्रांसफॉर्मेटिव अडैप्टेशन. तो अहंकार एक लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है. आई होप यू रिमेंबर द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस नाउ.
एक वर्ड टू वर्ड लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, ये एक कल्चरल रिक्रिएशन है, ट्रांसक्रिएशन भी कह सकते हैं इसको. व्हाट आर द की चेंजेस हियर जो इन्होंने, जैसे क्या होता है कल्चरल रिक्रिएशन. लाल सिंह चड्ढा मूवी आपने देखी होगी, ऑल्दो उसको बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ मिले, बट आई पर्सनली फेल्ट इट वॉज अ वेरी नाइस मूवी. उन्होंने उस इंग्लिश मूवी को अडेप्ट किया है, बट अडेप्टेशन इज सिंपली नॉट द राइट वर्ड, इट इज़ द रिक्रिएशन. हाउ? उन्होंने उस पूरी मूवी को इंडियन बना दिया, इंडियन बैकग्राउंड, इंडियन नेम्स, जितना भी रेवोल्यूशंस हुए थे इंडिया में उन सब को मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा नैरेटिव क्रिएट किया. वो है कल्चरल रिक्रिएशन. प्रेमचंद ने अहंकार में वैसे ही किया, उन्होंने कल्चरली रिक्रिएट किया, उसको नेम्स को इंडियनाइज कर दिया. जैसे ये नाम था, फ्रेंच वर्क में उन्होंने पाप नाशी कर दिया, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिंस. स्टाइलोपोलिस, पाप मोचन, प्लेस दैट फ्रीज फ्रॉम सिन. लैंग्वेज बिकेम संस्कृताइज्ड, हिंदी. लैंग्वेज भी चेंज किया है ऑफ कोर्स, बट इट इज़ नॉट सिंपली हिंदी, it is a sanskritized Hindi, elevating its spiritual tone. इन्होंने और क्या किया है, इंडियन रिलीजियस फिलोसॉफिकल वोकैबुलरी को भी ऐड किया है. माया, योगी, तपस्या, भक्ति, पद्मसना, तो ये पूरी इंडियन रिलीजियस और फिलोसॉफिकल वोकैबुलरी को इन्होंने ऐड किया है इसमें. उन्होंने कुछ जो सेंशुअल और एरोटिक एलिमेंट्स थे फ्रेंच ओरिजिनल में उसको भी टोन डाउन किया टू मेक इट मोर इंडियन. सो ही हाईलाइटेड द स्पिरिचुअल रिडेम्पशन ऑफ इट. ही एडेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑल्सो एंड कल्चरल पैरेलल्स ऑल्सो, ताकि वो लिंक कर सकें नैरेटिव को इंडियन ट्रेडिशन के साथ. सेंट्स, ऋषिज, रिनाउंसिएशन, ऑल ऑफ दिस. उसका आइडियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हुए? प्रेमचंद ने प्रेजेंट किया है थाइस को एज अ टेल ऑफ ईगो वर्सेस रिनाउंसिएशन. अलाइन, जिस अहंकार नाम है ना, तो ईगो को ईगो वर्सेस रिनाउंसिएशन, अलाइनिंग इट विथ इंडियन मॉरल स्पिरिचुअल आइडियल्स. तो इससे क्या हुआ? दिस मेड द फॉरेन टेक्स्ट डोमेस्टिसाइज्ड. अब ये सारी जो टर्म्स हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रांसलेशन में, वो हमने इसीलिए पहले किए हैं ताकि आपको ये सब समझ आ जाए. तो उन्होंने फॉरेन टेक्स्ट को डोमेस्टिकेट कर दिया इनटू इंडियन कल्चर, असर्टिंग द स्पिरिचुअल सुपीरियॉरिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बाय चूजिंग अ नॉन इंग्लिश वेस्टर्न ऑथर. बिल्कुल इंग्लिश नहीं थे, फ्रेंच ऑथर उन्होंने चूज़ किया, उसको शेप किया थ्रू इंडियन कल्चरल कोड्स. इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. प्रेमचंद ने रेजिस्ट किया है द कल्चरल हेजेमनी ऑफ इंग्लिश. इसका वाइडर इम्पैक्ट क्या हुआ? अहंकार इंस्पायर्ड अदर इंडियन वर्क्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा इनसे इंस्पायर हुए. इट शोज हाउ ट्रांसलेशन कैन क्रिएट न्यू लिटरेरी मॉडल्स एंड इन्फ्लुएंस ओरिजिनल इंडियन राइटिंग. पोस्ट इंडिपेंडेंस कंटिन्यूटीज आफ्टर 1947 जो इंडियन लिटरेचर है, इट सॉ इंक्रीज ट्रांसलेशंस, वो भी फ्रेंच से. तो देखो क्या इम्पैक्ट हुआ इसका. और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस से, फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टेंशलिस्ट राइटर्स को भी ट्रांसलेट करना शुरू किया. हिंदी जर्नल्स जो थे उन्होंने पब्लिश किया स्टोरीज को विच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच मॉडर्निज्म, जैसे कि राजेंद्र यादव का वर्क है अजनबी. इट एकोज एल्बर्ट कामूज द स्ट्रेंजर, नाम भी सुन लो, अजनबी और स्ट्रेंजर. सो फ्रेंच continued as a prestigious counterweight to English in Indian literary imagination. बहुत कमाल की चीज़ है मुझे लगता है. ट्रांसलेशन स्टडी सबको पढ़ लेनी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए. इससे हमें ना इतनी सारे लिटरेचर्स का पता चलता है. हिंदी लिटरेचर या जो भी इंडियन लिटरेचर है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वी हार्डली know about that. But through translation studies, you get familiarized with that also. फिर वो बात करते हैं टेंशन्स और कॉम्प्लेक्सिटीज़ की.
So although it is framed as a resistance, right, this text, जो French texts थे, they often came through English. तो English remained intermediary अभी भी, because French नहीं आती थी. अब प्रेमचंद चाहते थे fidelity, but also altered content showing the tensions between fidelity and cultural adaptation. So he removed some exoticizing racial descriptions, but he retained or introduced other Orientalist tropes. कुछ चीज़ें एज आई सेड उन्होंने इंडियनाइज की, कुछ चीज़ें रिमूव की, लेकिन कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस भी किया और रिटेन भी किया ओरिजिनल टेक्स्ट से. His emphasis on Indian spirituality risks essentializing India as purely spiritual, है ना. अब ये तो है कि कोई अगर उस ट्रांसलेशन को पढ़ रहा है तो वो एक आइडियोलॉजी क्रिएट करेगा इंडिया के बारे में अपने दिमाग में कि इंडिया जो है वो प्योरली स्पिरिचुअल साइड पे ही है, विच कैन ऑल्सो बी सीन एज लिमिटिंग, कि आपने एग्जॉटिक सेंशुअस एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, क्यों किया. सो दिस शोज दैट ट्रांसलेशन इज नेवर न्यूट्रल, it always negotiates power and identity. So conclusion is that India, England, France का जो ये triangle है, it illustrates how translation operates as a site of cultural power, conflict and negotiation. By translating French works, Indian writers broke the cultural monopoly of English, expanded their literary horizons and asserted their agency. Yet this move also remained entangled with English mediation and local ideological needs. अभी तक पहुंच तो गए वो लोग फ्रेंच वर्क्स तक, लेकिन इंग्लिश के थ्रू ही हो रहा था अभी तक. Ultimately, the essay reveals how translation can serve both as a resistance and assimilation, shaping modern Indian literature in complex ways. That's it. I hope you've understood the essay. Please let me know in the comment section. बहुत इंटरेस्टिंग है. आई होप आपने पूरा सुना होगा. दूसरी चीज़ कि ये अगर आपको नोट्स देखने हैं तो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे. यू हैव टू विजिट द वेबसाइट. ब्लॉग उस पर है, मैं आपका उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी. ठीक है. Thank you. Have a nice day and let me know if there's anything that you didn't understand.